going to see 3 important questions. So we are taking this series from Monday to Friday. Okay, Monday to Friday, 3 questions each. Okay, one thing I'll tell you, these questions are very, very important on a daily basis, whichever I am posting on the website. These questions are, I'm just separating them and they are very important. But if you really want to solve more such questions, go to our website, okay, and solve few more. If you want to solve more, you have to go for the prelims course of 2025. So if it all depends how much you want to learn. Okay, so if you are really get into this कि आपको ये वेबसाइट हेल्प कर रही है प्रीलिम्स के लिए, बिकॉज अभी जो क्राउड में है वो यूपीएससी के पेपर में नहीं है, तो आपको कुछ ऐसी यूनिक चीज करनी पड़ेगी. फॉर दैट रीजन यू हैव टू फाइंड समवेयर, either you find a gold tide platform or somewhere where you are getting the quality off track, some beyond unexplored areas, regions, क्योंकि अब आपका prelims बिल्कुल भी easy नहीं होने वाला है. Okay, now if you see this, the very first question, it talks about the which Central American country recently passed a historical judgment to defend their rights to a healthy environment by the Guapimal communities. अब आपको मैं I will tell you the reason why I ask you this question. Okay, first of all, just on the daily routine, I go to all the environmental websites. Similarly, I went to United Nations environmental websites and I found that this is the article. Okay, this was the article. Now, why this article is important? Because if you see here, the first word I saw here is historical law to protect the environment. This itself, this word is very, very important for UPSC. Okay, now you see that on a daily basis, somewhere some historical thing related to environment is happening. Some fund is being released, और आप UNFCCC website को देखिए. Okay, you see UNEP website. तो everything, something new related to plastic pollution को fight करने के लिए, ocean high level oceans is beyond jurisdiction, fishing community, marine oil spills. There are so many things related to the environment is going on. Now, if you see here, the word I have used deliberately is the Guapimal community. Now, this word will make itself the very unique, and only one word for this answer is, this is the Honduras. Okay, now if you see this answer is B here. So if you see the UN website, you see here their advocacy led to the passing of an important law, Executive Decree 2024, which safeguards protect the areas in Honduras and prohibit mining in these areas. So ये word and the first historical law of the Central American country. Okay, now this is very, very important. तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखोगे. Okay, now moving, आप देख लो ये Central American countries हैं. यू शुड बी, अच्छा मैप भी देख लो, मैप है. ओके, आई ब्यूटीफुली मैप भी है. अब देख लो आप, ये इसको कभी मत भूलना आप. ओके, दिस कंट्री आप देखना यहाँ पे जी, पहले जी आएगा, फिर एच आएगा, फिर ई आएगा. ओके, तो आप अगर क्लॉकवाइज देखोगे यहां से, तो पहले ई आया, फिर एफ से कोई कंट्रीज नहीं है, फिर जी आया, फिर एच आया. इस तरीके से मूव करो यहां से. ओके, उसके बाद एन आएगा, उसके बाद सी, उसके बाद पी. एनसीपी एक पार्टी है मुंबई की, राइट. सो इट्स लाइक आप देख लो यहां पे सब कुछ क्लियर है. अब ऐसे करके जाइए, ई एफ जी एच एनसीपी. अब तो इस तरीके से अगर आप निमोनिक्स बना के याद रखोगे तो चीजें कभी भी नहीं भूलोगे. अब कभी भी आप लाइफ में याद रख लेना इस चीज को, आप कभी नहीं भूलोगे कि ये ई एफ जी एंड देन एनसीपी, एनसीपी, कभी नहीं ये भूलोगे ये चीज, है ना. और इसको थोड़ा सा बेलीज भी है कंट्री यहाँ पे, तो अब आपको याद रहेगा ये चीज. तो चलो, हॉन्डुरस का हमने एक क्वेश्चन भी देखा, एक मैप भी देखा. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़, ठीक है. नाउ इफ यू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट टॉक्स अबाउट द पद्मा अवार्ड्स. नाउ दिस क्वेश्चन, पद्मा अवार्ड्स के 2 स्टेटमेंट्स इन दिस स्टेटमेंट आर ऑलरेडी आस्क्ड बाय द यूपीएससी. Okay, and I will tell you why this UPSC prelims is very, very difficult. Now, if you see here, the first question is, it is are eligible for these awards. So, government servants are eligible for these awards. पहली चीज तो ये हो गई. Okay, now
I will tell you this statement is actually wrong. Why this statement is wrong? First of all, this also is very important because government servants को आप कोई फेवर देने की बात करोगे, I will provide you Padma awards and all, तो थोड़ा सा एक ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है, राइट? सो दैट्स व्हाई यू सी हियर कि जजेस का कोई गवर्नमेंट सर्वेंट्स में एम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए टेन्योर के बाद. तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स विच इज प्रोहिबिटिंग एनी काइंड ऑफ फेवर फ्रॉम ईच अदर एनी इंस्टीट्यूशन, राइट? तो आप देख लो पद्मा अवार्ड. चलिए इसको तो चलो हम देखेंगे. द पद्मा अवार्ड्स आर कन्फर्ड टू द रिकमेंडेशन, आर कन्फर्ड ऑन द रिकमेंडेशन, ओके, ऑन द रिकमेंडेशन मेड बाय द पद्मा अवार्ड्स कमिटी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना? पद्मा अवार्ड्स कमिटी लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. तो प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन है कि नहीं? थर्ड क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू द मैक्सिमम ऑफ 3 in a particular year. Now this is kind of pure UPSC asked this statement. Okay, now Padma Awards which was instituted in 1954 was suspended only once. Again this has been framed by the UPSC. Now if you see कितना मुश्किल स्टेटमेंट है. इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू कि आप कभी भी जाके इन स्टेटमेंट्स को कभी भी ध्यान से पढ़ोगे भी. बट दैट्स व्हाई आई से इफ यू गो टू द ओरिजिनल वेबसाइट तो आपको सब कुछ मिलता है. दिस इज ओरिजिनल वेबसाइट, यू सी हियर. नाउ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये है. अब देखो आप यहाँ पे पद्मा अवार्ड्स विच वाज इंस्टीट्यूटेड इन 1954 announced every year on the occasion of the Republic Day except the brief interruption during the 1978 and 1979, 1993 to 1997. So it's kind of every year it is announced except 2 phases. So was suspended only once. It's a wrong statement. Okay, it's a wrong statement. Now देखो restricted to the maximum of 3 in the particular year. एक साल में 3 लोग को ही अवार्ड मिलना चाहिए. Now if you again see the statement here, the number of Bharat Ratna award is restricted to the maximum of 3 in a particular year. Government has conferred Bharat Ratna awards on 55% till date. तो ये तो चलो आप चेक कर लेना, ये बढ़ता रहेगा. It's obvious, it's taken once, so every year it is increasing. तो ये भी थोड़ा ये नंबर भी थोड़ा याद कर लो, 45 अराउंड है. So it may be increasing only, not below 45. तो अब 3 in a year ये यूपीएससी ने फ्रेम कर रखा है, 3 in a year. तो ये स्टेटमेंट आप देख लो, ये आपका स्टेटमेंट हो गया सही, राइट? स्टेटमेंट इज करेक्ट. नाउ इफ यू सी द सेकंड स्टेटमेंट, रिकमेंडेशन ऑफ द पद्मा कमिटी. नाउ कमिटी इज हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी. नाउ दिस कमिटी इज कंस्टिट्यूटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर बट हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी. तो जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है इट इज रॉन्ग. दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग. Is eligible, the government servants are not eligible for this award. This is very very important. नहीं है eligible, government servants are not eligible. इधर मेंशन किया है मैंने, एक बार देख लीजिए आप. नहीं किया, ओके, कोई बात नहीं, इट्स फाइन. बट 100% इट्स गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर नॉट पार्ट ऑफ दिस एंड दिस इज व्हाट द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑल्सो इज इनकरेक्ट. एंड अब आप एक्सप्लेनेशन देखो, ए ओनली 1 इज आंसर बिकॉज ये भी गलत है, ये भी गलत है एंड ये भी गलत है. ओनली थर्ड इज करेक्ट एंड ऑल रेस्ट आर इनकरेक्ट. सो दिस इज फॉर द सेकंड क्वेश्चन. नाउ मूविंग टू द वेरी थर्ड क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. इफ यू सी हियर, दिस इज द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 काइंड ऑफ. और ये बहुत इंपॉर्टेंट था, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. और जुडिशरी कोई टर्म के साथ खेलती है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, राइट? तो अब देखो यहाँ पे इन्होंने बेल को लेकर इन्होंने एक जो जजमेंट्स है, और टुडे लाइक सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली इट वाज इन्वॉल्व दिस वर्ड. इफ द एलिगेशंस ऑफ द प्रोसिक्यूशन इज सीरियस, कोर्ट्स कैन डिनाई हियरिंग द केस फॉर द ग्रांट ऑफ बेल इन अकॉर्डिंग विद द लॉ. तो अगर सीरियस एक्यूजेशन है, ओके, तो कोर्ट बेल डिनाई कर सकता है बिकॉज ही शुड नॉट बी ग्रांटेड बेल इफ समथिंग वेरी सीरियस हैज बीन डन. सो नो बेल हियरिंग इन द सुप्रीम कोर्ट. दूसरा, denying bail is considered as a violation of the rights guaranteed under Article 21 of the Indian Constitution. Okay, so that's why it's like आप देखो दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी है. सेकेंड स्टेटमेंट इज सेइंग दैट डिनाइंग बेल इज अ वायलेशन, और फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा कि हम बेल डिनाई कर सकते हैं, वी कैन डिनाई द बेल. सेकेंड स्टेटमेंट सेइंग दैट बेल वायलेशन होता है. तो इसका मतलब है बोथ स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं हो सकते,
ओके, समवन इज फॉल्स. सो व्हेन सम स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो इसका मतलब है ऑप्शन ए एंड बी तो हमारा एलिमिनेट हो जाता है. ओके, ट्रू, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू तो एलिमिनेट हो जाएगा. अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? इफ यू सी हियर व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज सेड, जस्ट हियर, when a case is made out of a grant of bail, the court should not have any hesitation in granting bail. The allegation of the prosecution may be very serious, but the duty of the courts is to consider the case for grant of bail in accordance with the law. Bail is a rule and jail is an exception in a settled law. तो बेल यू कैन नेवर डिनाई. इवन द पॉक्सको एक्ट में इन्होंने बोला है कि बेल को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं. इट डजंट मैटर, इट्स अ ग्रेव एक्यूजेशन, कमिटेड क्राइम, बट हियरिंग बेल इज द राइट एंड वी कांट डिनाई दैट. Okay, so if the court start denying the bail in deserving cases, it will be the violation of the human rights under Article 21. तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज. कितना सुंदर क्वेश्चन है, एंड सिंपली इट हैज बीन फ्रेम्ड फ्रॉम द आर्टिकल. ये बिल्कुल प्योर, दीज क्वेश्चंस यू वोंट फाइंड एनीवेयर. दिस आर प्योर, ओरिजिनल एंड वेरी डीपली रिसर्च क्वेश्चंस. तो आप इनको करो. सो टुडे दिस इज फॉर द टुडे. All three statement I have explained you. इसका भी आंसर एंड इसका पद्मा अवार्ड्स. द फर्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट द हिस्टोरिकल एनवायरमेंट लॉ. तो इस चीज का आप थोड़ा सा देखोगे, थोड़ा सा समझो और खूब प्रैक्टिस कीजिए. 100% आई अश्योर यू ऑफ बेटर परफॉर्मेंस इन 2025. See, I guarantee you, I can tell you, I can guarantee your pass percentage, the passing percentage in the prelims examination 90%. Okay, I can guarantee you this. But when I say this, that 100% you are going to improve your performance, believe, quality आपके सामने है, mentorship is going on, you can't have any problem. तो आप इस चीज को समझिए and keep moving, keep performing, keep practicing on the GoalTech platform. Please try to comment if you like, if you don't like मत कीजिए, but if you really like थोड़ा सा support कीजिए. These are the supports, right? चलिए, thank you so much.